In today's video, you will learn present continuous tense. And if I teach you present continuous tense, I can also just help you to understand past continuous and future continuous tense. Okay. So you know what is present continuous tense. If I tell you what is present continuous tense in Bengali and Hindi, I think it will be very clear to you. You know, present continuous means present and it is continuous. What does it mean? Present continuous means, it means when something is continuing. Understood? When something is continuing, when in the present. It means at present you see something happening. You get it? Suppose you yourself can be in the middle of an action. When someone is in the middle of an action, that is called present continuous tense. Like I am telling you, he is in the middle of going to market. What does it mean? If you are in the middle of going to the market, it means you are walking, understood, towards the market. You are in the middle of an action. What kind of action are you performing? You are performing the act of going towards or to the market. Is that clear? That's how all the present continuous tenses, understood, can be formed. So all you need to do is, if you make present continuous tense, all you need to do is, you need to use the present form of verbs and you need to bring am, is, are, be verbs. Be verbs means auxiliary verbs. I have told you, am, is, are, be verbs. Clear? And if you put am, is, are, be verbs in front of the present form of verb, understood, the verb will end in ing. Is that clear? Ing will be added. How can the ing be added? It can be added only if I put am, is, are. Understood? According to subject. If the subject is in the second person, if the subject is in the third person, if the subject is in the first person, I will take am after it, and we will take are, because we means many in number. Understood? We are many people. You get it? I am only one, so I will take the auxiliary verb of the verb am. He or any third person singular number will take is. Understood? And only plural forms of any nouns, any pronouns, and will take are, including you, they. Understood? If Ram and Shyam are there, Tom and Harry will be are. Understood? Are will be used after these two subjects. Is that clear? So I am sure, and after you add them, if you put first, you need to use the subject. For example, I. Then after I bring am. Understood? After am, present form of the main verb. Like for example, go, see, write, play, take. Understood? And as soon as you put am, is, are after the person, then as due to the presence of am, is, are or be verbs after subjects or in front of the present form of the main verbs, ing will be added. It will, the main verbs will end in ing. That's how present continuous tense are. Understood? Present continuous tense is okay. And dear children or everybody, you will learn how to you will learn present continuous tense the easiest way, because I am going to draw a picture, and I am sure with the help of this picture you will understand present continuous and you will never ever forget present continuous. I am 100% sure. And you will also learn present continuous, past continuous, future continuous. Is that clear? Okay. Let's learn present continuous. Okay. Present, PRE, the present continuous tense. Clear? So when you are learning present continuous, clear, it means the tense that talks about continuity of an action. Understood? If the action is going on. Okay, let me explain it in Bengali first and then in Hindi. Is that clear? That's the same thing I am going to explain. देखो, যদি তুমি
কোনো কিছু করার মধ্যে থাকো অনবরত। যেমন তোমার মাথার ওপরে যে ফ্যানটা রয়েছে, দ্য ফ্যান ওভার ইউর হেড ইজ মুভিং। কোনো জায়গায় কোনো একটা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মের সাথে আইএনজি যোগ করে দেখো, মনে হচ্ছে যেন ওটার মধ্যে কি অনবরত হয়ে চলেছে। যেমন মুভিং, মুভের সাথে আইএনজি যোগ করেছি মানে যেন ঘুরেই চলে যেটা বোঝাচ্ছে। যদি রানের সাথে আইএনজি যোগ করে দেখো মনে হয় চলন্ত। भावटार भाव के अंदर में लग रहा है कि कोई जान घुस गया है, ठीक है ना, चलता ही आ रहा है, चलता ही आ रहा है। अगर आप फोन में बात कर रहे हो, टॉक बात करना, ठीक है, आईएनजी बैठा दिया, क्यों? क्योंकि चल रहा है, ये चलते बन रहा है। यू गेट मी व्हाट आई एम सेइंग? व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन, जब कोनो चीज हो रहा है, होता ही जा रहा है, थमने का नाम नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अंडरस्टूड? प्रेजेंट क्यों भाई? वर्तमान में। प्रेजेंट क्यों? वर्तमान में हो रहा है वो चीज। सबसे लिविंग एग्जांपल्स आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखने को मिलेगा। यू विल सी प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन फ्रंट ऑफ योर नेकेड आईज। कहाँ बोलिए तो? हैव यू एवर बीन टू द सी? हैव यू एवर गॉन टू सी द सी? समुंदर देखे आप? हैव यू एवर सीन द सी? समुंदर अगर आप देखे हैं, एज यू लिव नियर द सी, आप तो समुद्र के सामने ही रहते हो, एज यू लिव नियर द सी, सी इज द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कैसे बोलिए तो? देखिए मैं समुद्र से इसीलिए बता रहा हूँ, समुद्र केन जीवंत उदाहरण, बोलो तो केन? समुद्र হচ্ছে জীবন্ত উদাহরণ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। কেন জানো? এদিকে তাকাও। মনে করি, আমি মনে করি দিয়ে বলছি, ফর एग्जांपल মনে করি, इसको मैं बंगाली में लिख रहा हूँ, मने करी, सोचिए, फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्टूड? जैसे मने करी का अर्थ होता है फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एज फॉर, अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सी, ए सी ई, ए सी ए, सी का मतलब हम लोग बंगाली में कहते हैं समुद्र। समुद्र, समुद्र, এই সমুদ্র সমান সমান, আমি যদি সমুদ্র সমান, সমুদ্রকে মনে করছি, তাকাও, সি, এ সি এ সি সমান সমান আমি কি বলছি? প্রেজেন্ট ফর্ম অফ ভার্ব। প্রেজেন্ট फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब। एक मेन वर्ब, अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, देखो भाई, देखो इसको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे गो, सी, रीड, ठीक है, ये क्या है? प्ले, PLAY, प्ले। এই যে প্রেজেন্ট ফর্মটা রয়েছে মেন ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, গো, সি, রিড, প্লে, এটাকে পাস্ট করলে কি হবে বলো তো? কি? এদিকে তাকাও। গো এর পাস্ট ওয়েন্ট, সি এর পাস্ট স, রিড এর পাস্ট রেড, পাস্ট, প্লে এর পাস্ট প্লেড, পাস্ট, এগুলোর পাস্ট হচ্ছে প্লেড। এবার তাহলে এই প্রেজেন্ট ফর্মটাকে তুমি মনে করছো কি? সমুদ্র। এদিকে তাকাও, তুমি সমুদ্রকে কি করতে দেখো বলো তো? সমুদ্রকে তুমি কি করতে দেখো? সিটাকে অনবরত বয়ে চলেছে না? সমুদ্রের সামনে হাওয়া কোথাও নেই, কিন্তু সমুদ্রের সামনে তুমি অত বড় একটা জল রাশি, তো इतना बड़ा जल, इतना बड़ा माने वाटर बॉडी, तो उसके सामने बहता हुआ हवा आप जरूर पाएंगे। या तो वायलेंटली बहेगा हवा, नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन बहेगा जरूर, कंपलसरी है भाई। तो देखिए मैं मान रहा हूँ वायु, समुद्र किसके आगे रहता है? अरे भाई समुद्र के आगे ही ना वायु बहेगा, कहाँ से? समुद्र के आगे मान लो। अब वायु रखो, एयर, एयर किस हिसाब से सोच रहे हैं हम लोग? मने करी, ऐसा मान के चलो कि एयर समान समान क्या है भाई? एम इज आर, आर, एम इज आर क्या है? एयर। समुद्र के आगे अगर हवा को बहा दो, ये जो वर्ब है इसको मैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब को क्या मान के चले? क्या मान के चले बताइए? इसको हम सी मान के चले या नहीं? बताओ, इसको सी माना या नहीं? एक समुद्र मान लिया, गो को भी समुद्र मान लिया, डू को भी समुद्र मान लिया,
प्ले को भी समुंदर मान लिए हम लोग, समझ में आया? मान लिए इसको, रीड को मान लीजिए, रीड মনে করো रीड को अपनी समुद्र মনে करो। तो এবার ये जो वर्तमान में वर्तमान काल जो प्रेजेंट कंटिन्यू प्रेजेंट हम बना रहे भाई, तो ये बी भाव का हम लोग कौन फॉर्म है बताओ? एम कब बैठता है? प्रेजेंट टेंस में बैठता है या नहीं? बी भाव का जो हम 3 रूप देखे थे उसमें हम लोग क्या देखा था? एम वर्तमान में यूज होता है। मैं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं एक बालक हूँ, आई एम अ बॉय। तो वर्तमान में जगह जब मैं कहेंगे, हमको जब कहना है वर्तमान में कि मैं एक बालक हूँ, तो एम का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब वर्तमान का वायु समान समान वायु को मान रहे हैं, एम को मान लीजिए कि ये वायु है वर्तमान का। एम ऑक्सिलरी वर्ब से कहाँ बैठा है? समुद्र के आगे, ये वायु मान के चल रहे हैं। इस को भी हम वायु मान के चल रहे हैं, एयर मान के, आर को भी वायु मान के चल रहे हैं। इसको हम क्या कहाँ बैठा दिए? समुद्र के आगे। समुद्र को जाके धक्का मारेगा, उसको पुश करेगा, है या नहीं? उसको बह के, अगर ये समुद्र है, एम इज आर, इसको वायु है, एम और इज और क्या है? आर। ये अगर वायु है, क्या करेगा ये? कहाँ जाएगा? वेयर विल दे गो? वेयर इज दिस एयर गोइंग? बताओ। जाके ना इधर धक्का मारेगा या नहीं? हाँ, इससे पहले ये समुंदर है तो उसको आगे जाके धक्का मारेगा। अगर ये समुंदर है तो उसको अगर धक्का मारा तो क्या होगा? समुंदर का आकार बढ़ेगा या नहीं? Violent. If the violent wind touches the sea, what happens? The water body will expand. The size of the sea will increase or not? समुद्र का जो आकार है ना वो बढ़ेगा या नहीं बताइए? समुद्र आकार का बढ़े जावे कि ना? The size of the sea will expand or not? तो मान लीजिए ये जो आकार बढ़ेगा तो इसको मैं आईएनजी, जो आकार बढ़ रहा है इसको मैं आईएनजी हिसाब के मानेंगे, और आईएनजी समान समान क्या मानेंगे? वेव। ठीक है, ये जो बढ़ा है, बढ़ोतरी हुआ है, हेलो, आईएनजी समान समान क्या है? वेव है। ये आईएनजी को वेव मान के चलिए। वेव का मतलब क्या होता है? ढेउ होता है या नहीं? ढेउ तभी बढ़ता है, समुद्र का आकार जो बढ़ा हुआ अंश जो है, बढ़ा हुआ समुद्र का बढ़ा हुआ अंश को क्या बोलेंगे? ढेउ, लहर। तो इधर ये जो भार समुंदर है ना, इसको एम वायु से आघात करो, एम वायु से अगर गो समुंदर को और गो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब को अब आघात करेंगे, क्या होगा बताइए? आईएनजी जुड़ जाएगा, मतलब आकार बढ़ गया। आकार बढ़ने का अर्थ क्या होता है? समुंदर आकार में बढ़ने का अर्थ क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इज, डू के आगे बैठाओ, क्या होगा? इज डूइंग, मतलब कर रहा है। आर, प्ले के आगे बैठाओ, आर प्लेइंग, मतलब बहुत सारा लोग होगा तो हम आर बैठाएंगे। जैसे कि 3 बॉयज फुटबॉल खेल रहा है, 3 बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। अगर एक नाम होगा, एक सिंगुलर नंबर होगा, एक ही नाम, उसके बारे में अगर बताएंगे ना, राम नाच कर रहा है, डांस कर रहा है, बोलिए तो राम इज डांसिंग बोलेंगे। अच्छा, जदू खेल रहा है, जदू इज प्लेइंग। मेरा दोस्त आ रहा है, क्या बोलेंगे? माय फ्रेंड इज कमिंग। जोर से बोलिए ना थोड़ा। माय फ्रेंड इज कमिंग। माय फ्रेंड इज कमिंग। अच्छा, मैं एक खत लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग ए लेटर। जाने क्या भाई, तुमको इसका छवि ड्रॉ करके सिखाने का इरादा क्या है मेरा? जैसे ऐसे करके तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि आपको मार के भी कोई नहीं भुला सकता। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ, क्या बोलेंगे बताइए तो? अरे भाई जल्दी बोल। मैं एक पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, बताओ। आई एम ड्राइंग ए पिक्चर। आई एम ड्राइंग ए पिक्चर, आई एम मेकिंग अ पेंटिंग, ठीक है ना? अच्छा, मैं ना मेरा एक फोटो खींच रहा हूँ। आई एम टेकिंग अ फोटोग्राफ, आई एम टेकिंग अ स्नैप। अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? अच्छा ठीक है। अच्छा, वो मेरा फ्रेंड गाना गा रहा है। माय फ्रेंड इज सिंगिंग। वाह, वेरी गुड। अ नाइस सॉन्ग, ए सैड सॉन्ग, दुख वाला, दुख भरा गाना। सिंगिंग ए सैड सॉन्ग। माय फ्रेंड इज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग। इसका मतलब इतना खूबसूरती के साथ आप सीखे, आपको मार के भी कोई भुला नहीं सकता।
समझ में आया आपको? तो इससे कंप्लीट हो गया ना? हाँ, मैं पूछ दूँ उसको, आइडिया हो गया? वेरी गुड बॉय। इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस अब कभी भूलेंगे? भूलेंगे नहीं। अच्छा चलिए, थोड़ा मैं ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे और नहीं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदलेंगे तो क्या करेंगे बताइए? सब खेल किस में है बोलिए तो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैन चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस इफ यू चेंज द हेलो forms of the be verbs. If you change the forms of the be verbs, present continuous will change into past continuous. Understood? How? If you change the forms of the be verbs, present continuous can change into past continuous. No. No. If I change the present forms of the be verbs into past forms of be verbs, the present continuous will change into past continuous. And if I change the present form of the present continuous into future forms, understood? If I change the present forms of be verbs or auxiliary verbs into future forms of be verbs, the present continuous will change into future continuous. Is that clear? Have you understood? तो मैंने समुंदर से दिखाया आपको, तो मैंने एक पिक्चर ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है? ये वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर है। दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है? दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये है पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है? पास्ट कंटिन्यूअस और ये है पास्ट कंटिन्यूअस और एक बना रहा हूँ एक फ्यूचर कंटिन्यूअस बना दे रहा हूँ, ठीक है ना? फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो बोला था आपको एग्जाम्पल देंगे वही होता है या नहीं, ठीक है? लेट्स सी। चलो मैं एक प्रेजेंट फॉर्म का एक ये समुंदर है, बीच में रहता है, तो समुंदर की जगह में ना मैंने गो बैठा दिया, गो और डू, ठीक है? और प्ले बैठा दिया, ठीक है? और ये वायु क्या होगा प्रेजेंट का वायु? एम इज आर ना, बी वर्ब एम इज आर। ये क्या है? ये वायु धक्का दे रहा है इसको, ये धक्का दे रहा है इसको, ठीक है ना? ये धक्का दे रहा है इसको, तब आईएनजी आ जाएगा ना, वेव के हिसाब से आईएनजी आएगा या नहीं? धक्का मारा तो आईएनजी आ गया, समझ में आया ना? हाँ, इसको बैठाओ, ये आ जाता है, भाग को बना लिया हम लोग। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आएगा? हम बोले थे आपको द प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैन चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस इफ द बी वर्ब्स, दीस आर बी वर्ब्स, इफ द बी वर्ब्स चेंज्ड इनटू पास्ट फॉर्म्स ऑफ बी वर्ब्स। इसको अतीत रूप में लाया जाता है बी वर्ब का, तो एम और इस का अतीत क्या है? वॉज। ये पास्ट वाला वायु था, ये कौन सा वायु? पास्ट वाला वायु, तो इसको वॉज बैठा दिया। और आर का अतीत क्या है बाबू? आर का अतीत क्या है बोलो? आर का वेयर हो गया, तो इसको अगर बैठा देंगे इधर, मान लीजिए गो, ये पास्ट कंटिन्यूअस हुआ या नहीं? हाँ बोलिए, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया? हाँ, ले बैठा इधर, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया ना? समझ में आया? और फ्यूचर कैसे करेंगे बताइए? आपको याद है कि मैंने बोला था, मान लो कि वॉ समान समान क्या होता है? शैल। बी वर्ब बनाओ फ्यूचर वाला, और विल, ये समान समान क्या होता है? विल। समझ में आया? तो उसको एम का मतलब क्या होता है? मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। बोल दिए आप, मैं एक बालक हूँ, मैं एक बालक था बोलेंगे तो बी वर्ब का अतीत रूप बैठा देंगे, आई वॉज अ बॉय। मैं एक बच्चा बनूंगा, क्या बोलेंगे आप? अच्छा, मैं एक आई एम अ स्टूडेंट ना, आई एम अ डॉक्टर, मैं बता रहा हूँ, DOCTOR, ठीक है? ये डॉक्टर आप थे, आई वॉज अ डॉक्टर, मैं इधर डॉक्टर कर दिया, आई वॉज अ डॉक्टर, समझ में आया? और मैं एक डॉक्टर बनूंगा भविष्य में, क्या बोलेंगे? होबो, आई ना, शैल का मतलब क्या? बॉ होता है, हॉ इंग्लिश क्या है बता दो?
हवा का मतलब बी होता है ना, बी माने हवा ना। I shall be. हाँ, तो মনে করি, मान लेता हूँ, মনে করি, মনে করি কি মনে করি বলো, মনে করি হ সমান সমান কি बी, शॉर्ट फॉर्म করলাম, ह को बी मान के चलो, ह को बी मान के चलो। तो अगर मैं হবো, হবো কথাটা যদি বলি তো কি পাবো, বয়ের জন্য কি পেয়েছি, B. शैल, Oh, shall. হ के लिए शैल पाया हाँ। और ह के लिए क्या पाया, B. बी। तो इंग्लिश बांग्ला का उल्टा होता है, Hmm. हिंदी का उल्टा होता है, तो मैं शैल को आगे लेके आऊंगा, शैल को आगे I लाया, shall be a doctor. शैल और बी को पीछे लेके जाओ, समझ में आया। Hmm. तो हॉबो को अगर व्याख्या करेंगे इधर हॉबो, तो क्या क्या, वॉ के लिए क्या मिला आपको, शैल मिला, Hmm. और हॉ के लिए क्या मिला आपको, बी। तो इंग्लिश बंगाली का उल्टा होता है, तो आप इसको शैल आगे लेके आइए और बी को बाद में लेके आइए, शैल भी हो गया। इधर देखो, फ्यूचर में क्या बैठाएंगे, बी वर्ब हो गया, शैल बी, ठीक है, कंप्लीटेड। और बे का मतलब क्या होता है बाबू, B. बोलो, बे का मतलब विल होता है ना, तो बे का मतलब क्या होता है बोलो, B. विल, ठीक है। तो आप अगर आप बोलेंगे हॉबे, वो होंगे, तो हॉबे, बे के लिए क्या मिला आपको, विल, और हॉ के लिए क्या मिला आपको, बी। बांग्ला इंग्लिश का उल्टा है, तो इसको इधर लेके जाओगे, तो क्या हो गया, हॉबे को विल भी कहता है। तो बी वर्ब मिल गया हमको फ्यूचर का, फ्यूचर वाला बी वर्ब मिला या नहीं, फ्यूचर वाला बी वर्ब क्या है बताओ, फ्यूचर का एयर क्या है, शैल बी विल बी, कौन सा एयर है बताओ, Hmm. शैल B. बी, और क्या है, Will be. विल बी। तो उसको क्या करेंगे, Future में. भाट के ऑन फॉर्म के, Future. वो डू और प्ले, इसके आगे बैठा देने से क्या हो जाएगा बोलो, आईएनजी बैठेगा ना इधर, हाँ. हाँ। तो क्या करेंगे आप बोलो कि मैं आता रहूंगा, क्या बोलेंगे, मैं आता रहूँगा. हाँ, I shall be going. आई शैल बी कमिंग, Oh, coming. Sorry. अच्छा मैं जाता रहूंगा, I shall be going. ठीक है, मैं खेलता रहूंगा, I shall be playing. आई शैल बी प्लेइंग, मैं करता रहूंगा, I shall be doing. आई शैल बी डूइंग। थोड़ा आगे जोड़ करके बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, रामायण नष्ट हो जाएगा क्या, बोलो जोर से, मैं खेलता रहूंगा, I shall be playing. सॉरी, आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेलता रहूंगा फुटबॉल, आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल। मैं डांस करता रहूंगा, I shall be. आई शैल बी डांसिंग। तो मतलब हम लोग 3 कंटिन्यूअस टेंस सीख लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, इसको अलग अलग करके भी हम लोग करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यू कैन नाउ मेक सेंटेंसेस, मैं 3 सेंटेंस बनाने के लिए बोलूँगा, बताओ 3 सेंटेंस कैसे बनाऊंगा, कैसे बनाएंगे आप, जस्ट टेल मी हाउ यू विल मेक 3 सेंटेंसेस प्रेजेंट कন্টিনিউয়াস। তুমি একটা বলো, উদাহরণ দাও। আচ্ছা, সে একটা চিঠি লিখছে, কি বলবে, She. अगर आप जब बोलेंगे ना वो एक खत लिख रहा है, क्या बोलेंगे बताइए, ही इज राइटिंग ए लेटर मैन, ही के बाद इस बैठाएंगे, वो थर्ड पर्सन है, He is writing a ही इज letter. राइटिंग ए लेटर, और वो एक खत लिख रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। हाँ. He. अरे इसको वाज बना देंगे ना, He was विभाग का writing. चेंज होने से ही He कंटिन्यूअस was writing a letter. ही वाज राइटिंग इट। अच्छा, मैं एक खत लिखता रहूंगा, He were writing a letter. हैं, हाँ. लिखता रहूंगा, लिखते থাকবো, वो Oh, लिखते थाको future. बोलो, जोर से बोलो, बोलो. तुम घबरा जाते हो क्या, एक एक करके करूं, बोलो, बोलो. आई शैल बी राइटिंग अ लेटर ना। अच्छा, मैं दंत मंजन कर रहा हूँ, क्या बोलेंगे, मैं दान मंजन कर रहा हूँ. अरे भाई दांत को क्लीन कर रहा हूँ, बोलो ना जल्दी, I am cleaning my teeth. आई एम क्लीनिंग माई टीथ, आई एम ब्रशिंग माई टीथ, ठीक है, मैं दांत ब्रश कर रहा था, बोलो, I was brushing my teeth. जोर से बोलो ना, I was brushing my teeth. आई वॉज ब्रशिंग, इसका मतलब कॉन्फिडेंस का कमी दूर कर दो, इतना जोर से बोलो कि तुम्हारा जो सीने के अंदर में है छुपा हुआ डर है वो भाग जाए, जोर से बोलो, I was washing my teeth. आई वॉज वॉशिंग माई टीथ, नो आई वॉज ब्रशिंग Brushing माई my teeth. माई गुडनेस, आई वॉज ब्रशिंग माई टीथ, आई वॉज क्लीनिंग माई टीथ, ठीक है, मैं करता रहूंगा, আমি দাঁত মাজতে থাকবো, I shall be washing my teeth. आई से वॉशिंग और ब्रशिंग, Cleaning. नहीं देखो brushing. क्लीनिंग और ब्रशिंग, माई गुडनेस। आप इतना डर को ना किल द फियर, आप
अपना देखिए, एक बात बता रहा हूँ, टुडे आई एम टेलिंग यू, आप डर को खत्म तभी कर पाएंगे जब आप कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश 1000 जगह में सीख लीजिए, तभी सीख नहीं पाएंगे जब तक आप आपको खुद को बोलेंगे कि मैं डरपोक नहीं हूँ। नहीं तो आप डरते 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 छोटा मोटा चीज़ सीख नहीं पाएंगे। And I want you to kill your fear before you learn a language. It is necessary to kill your fear. अच्छा, আমি ইতিহাস বই পড়ছি, বলো। না, I am reading history. मैं पढ़ रहा था इतिहास I বই। was reading history. I was reading history. আমি পড়তে থাকবো। I shall be reading history. I shall be reading history. So with this I come to the end of the class. I am sure that you have learned how to make present continuous, past continuous, future continuous. If you have liked my class, please don't forget to give me a like or a thumbs up. Or if you find it important, you can subscribe to my channel. And if you subscribe to my channel, don't forget to press the bell icon. If you do it, you will get all the videos that I have uploaded. Bye.